Good morning, students. Now, the topic of today's discussion is the sub part of Unit 2, and the last part of Unit 2 is Introduction to Iridoids, Terpenoids, and Naphthoquinones. In this, we are going to understand about iridoids, what terpenoids are, and what are naphthoquinones. Okay? Now, continuing with the topic. First of all, you need to know what is the meaning of the term terpenoid. As you all well aware about this term, terpenoid is terpenes मीन्स terpenes से हमारा क्या बनता है terpenoid. ठीक है. terpenes constitute one of the most important groups of essential oils. ठीक है. जो हमारे essential oils होते हैं, volatile oils होते हैं, वही हमारी terpenoidal moiety होती है, terpenoidal group होता है. उन्हीं को हम terpenoids भी बोलते हैं. The group includes constituents such as limonene, philandrine, cedrine, etc. and their oxygenated derivatives such as geraniol, citral, carvon, camphor, cineol and many others. ठीक है. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी ड्रग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? लिमोनिन होता है, सेड्रीन, फिलेंड्रीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. These compounds arise at the geranyl pyrophosphate and farnesyl pyrophosphate levels respectively. ठीक है. ये जो compounds हैं ये बनते हैं geranyl pyrophosphate and farnesyl pyrophosphate levels. ये levels क्या हैं? जो हमारे pathways होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अभी आगे, एसिटेट मेवलोनेट पाथवे एंड शिकमिक एसिड पाथवे, जिनसे हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और ड्रग्स निकलते हैं. ठीक है. डिफरेंट ड्रग्स बनते हैं. ठीक है. उनमें हमारी स्टेजेस होती हैं, लेवल्स होते हैं, जैसे कि जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट लेवल्स होते हैं. उनसे हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं जो कि हमने ऊपर अभी मेंशन किया. फ्रॉम द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक टर्म्ड एज आइसोप्रीन यूनिट. कौन सी यूनिट से बनते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से. आइसोप्रीन यूनिट से ही हमारा क्या बनते हैं? टर्पिनॉइड मोइटी. आइसोप्रीन यूनिट यू कैन सी. This is the structure of isoprene unit, CH2, CH2 and CH3. Okay. Now the classification of terpenoid is, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the serial numbers, and the number of carbon atoms are, when the number of carbon atoms are 10, then the value of N is, you can see one thing which is left there, that is the unit of isoprene unit, जिससे हमारी टर्पिनॉइडल मोइटी बनती है. आइसोप्रीन यूनिट C5H8. ठीक है. C5H8 मीन्स 5 मोइटीज ऑफ कार्बन एंड H हाइड्रोजन के 8. तो इसमें आप देखेंगे तो जो N है 5 और 8 हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है, वो है हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर 10 है तो उसमें N वैल्यू हमारी होगी 2. ठीक है. 10 कार्बन एटम में वैल्यू होगी 2, और उस क्लास को, टर्पिनॉइडल क्लास को, हम क्या बोलेंगे? मोनोटर्पिनॉइड्स. इसमें आप देखेंगे C10H16. ठीक है. ये हमारा आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 15, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वोलेटाइल ऑयल्स वाली यूनिट में. ठीक है. लेकिन अगेन यू आर रिवाइजिंग दिस थिंग. नाउ द वैल्यू ऑफ N इज 3 एंड द क्लासिफिकेशन इज नोन एज सेस्क्विटर्पिनॉइड्स. ठीक है. इसमें आपकी जो आइसोप्रीन यूनिट होगी उसका फॉर्मूला होगा C15H24. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 20, वैल्यू ऑफ N इज 4 and the class is diterpenoids, that is C20H32. Now the number of carbon atom is 25, the value of N is 5 and the term or the class known as sesterpenoids, and the symbol is C25H40. Now the number of carbon atom is 30, value of N is 6, classification is triterpenoids, that is C30H48. Now the number of carbon atom is 40, value of N is 8 and the class is tetraterpenoid, that is C40H64. अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे फॉर्मूलाज भी चेंज होते जाएंगे. नेक्स्ट यू कैन सी मोनोटर्पीन्स जो यूनिट है हमारी, मतलब पहली यूनिट.
तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑसिमीन एंड मिरेसिन. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिमीन एंड माइरेसिन. दिस स्ट्रक्चर यू नीड टू draw in exam whenever asked in exam. Next category is aldehydic monoterpenes. इसका examples है geraniol and nerol. These are the structures of geraniol and nerol. Next is alcoholic monoterpenes. That's example of alcoholic monoterpenes is geraniol and nerol. That is the structure of geraniol is this and nerol is this. Next, monocyclic terpenes, monocyclic aldehydes. You can say the example of monocyclic aldehydes are peryaldehyde and philandrol. ठीक है, peryaldehyde and philandrol. The structure of peryaldehyde and philandrol you can see. Now the alcoholic monoterpenes. The example of alcoholic monoterpene is alpha terpineol and menthol. Next, sesquiterpenes. The example of sesquiterpene is zingiberine. ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज डाइटरपीन्स. डाइटरपीन्स में आपके एग्जाम्पल है विटामिन्स, मैनूल एंड पोडोकार्पिक एसिड. नेक्स्ट ट्राइटरपिनॉइड्स. द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइटरपिनॉइड इज स्क्वेलिन. नेक्स्ट वेराइटी इज टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड्स. इसमें आपके एग्जाम्पल है लेनोस्टेरॉल एंड एग्नोस्टेरॉल. नेक्स्ट पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा मायरिन, बीटा मायरिन. तो ये सब इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डिस्कशन अबाउट टर्पिनॉइड्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, और इसी के अंदर आपका सब टॉपिक था व्हाट इरिडॉइड्स आर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इरिडॉइड्स. ठीक है, नाउ इन दिस यू कैन सी इरिडॉइड्स आर, ये आपके सब पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं. ठीक है, क्या हैं ये, मोनोटर्पीन्स हैं. इरिडॉइड्स भी क्या है, मोनोटर्पीन्स, टर्पिनॉइडल मॉइटी से ही बने हैं. ठीक है, साइक्लोपेंटा सी पायरानॉइड स्केलेटन होता है इनका. इरिडीन स्केलेटन होता है, दैट इज सिस 2 ऑक्सा बाईसाइक्लो 4,3,0 नोनेन. ठीक है, अब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट द टाइप ऑफ इरिडॉइड्स आर सेकोइरिडॉइड्स बाय क्लीवेज ऑफ द 7 और 8 बॉन्ड ऑफ द साइक्लोपेंटेन रिंग. जो आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग होती है, उसका जो 7 और 8 पे जो बॉन्ड होता है उसकी क्लीवेज को क्या बोलते हैं, सेकोइरिडॉइड्स. ठीक है, ये है टाइप आपका सेकोइरिडॉइड्स, जब आपकी क्लीवेज होती है 7 और 8 बॉन्ड की साइक्लोपेंटेन रिंग में. सम ऑथर्स लिमिट्स द डेफिनेशन अप टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड, सेकोइरिडॉइड ग्लाइकोसाइड, नॉन ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड्स. ठीक है, ये इनके की पॉइंट्स हैं. नाउ हाउ यू कैन डिराइव द इरिडॉइड्स. ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द आंट्स ऑफ द इरिडोमिरमैक्स जीनस. ठीक है, आंट्स मीन्स चींटियाँ. तो ये हमारा जो इरिडॉइड टर्म है वो कब बना था, जो हमारा इरिडोमिरमैक्स जीनस है उसके जीनस की जो आंट्स हैं उन्हीं के पीछे ये नाम बना था. फ्रॉम विच वर आइसोलेटेड कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट्स. इनसे जो हमारा इरिडोमिरमैक्स जीनस की एंट्स थी उनका जो आइसोलेटेड कंपाउंड्स होते थे, मींस उनके जो केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे उसके अंदर, वो इन्वॉल्व होती थी डिफेंस मैकेनिज्म में इंसेक्ट से. ठीक है, इंसेक्ट से डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती थी. तो इसी की वजह से हमारा इरिडॉइड नाम इनका पड़ा है. ठीक है, इरिडॉइडल, इरिडोमाइरमिसिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द इरिडोमिरमैक्स जीनस. ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. दे एग्जिस्ट इन प्लांट्स एज वेल. ठीक है, जो इरिडॉइड्स हैं हमारे, ये हमारे प्लांट्स में भी मिलते हैं. लाइक नेपेटालैक्टॉन फ्रॉम नेपेटाकेटेरिया. नेपेटालैक्टॉन इज अ chemical constituent which can be isolated from the plant Nepeta belonging to family Lamiaceae, or Teucrium lactam C from the plant Teucrium marum, which have the marked properties also. Now you can see the plant Nepeta have the effects on cats also, so termed as catnip, and Catzanimalize herbaeox chats. Now iridoid generally contains 10 carbons, which may even have more or multiple structure variations up to polycyclic structures. ठीक है,
स्ट्रक्चर वेरिएशंस भी हैं इसमें, बेसिकली 10 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएशंस की वजह से पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी फॉर्म हो जाते हैं. Next, you can see the structure, the skeleton of iridoid structure is, you can see the 5-membered ring and 6-membered ring. 6-membered ring में आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग था, ठीक है. इसमें 5-membered ring है एंड 6-membered ring है जिसमें कि आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है OH एंड आपका 10 कार्बन प्रेजेंट है, 10 और 11, ठीक है. दिस इज द जनरल इरिडॉइड स्केलेटन. एक डबल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है. जनरल सेकोइरिडॉइड स्केलेटन, ठीक है. सेकोइरिडॉइड में आपका जो 5-membered रिंग है वो एक ओपन स्केलेटन बन गया है, बाकी सब आपका पूरा सिमिलर है, ठीक है. नाउ द अकरेंस ऑफ इरिडॉइड्स, दे आर बायोसिंथेटिकली होमोजेनियस. दे इंसेक्ट्स, आंट्स जिसमें ये पाए जाते हैं. प्लांट्स में डाइकोटिलिडन में पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में. एंड द प्लांट फैमिली जिसमें कि आपके इरिडॉइड्स अकर होते हैं वो हैं डिप्सिकेल्स, जेंशियनेल्स, लैमियल्स, स्क्रोफुलरियल्स, ठीक है. इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड्स आर glucoside glycoside linkage between OH group on anomeric carbon of D-glucose and the OH group in the one position of A-glycon. Smaller number of structure, that is one sugar portion, is oligosaccharide. Example, rhamnosidisa. Glucose is linked to 11-hydroxymethyl group. Example, ebulosidin caprifoliaceae. Non-glycosidic iridoid. And alkaloid present in this is skytanthine. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इरिडॉइड में आपके 10 कार्बन एटम तो प्रेजेंट हैं ही, जो रिंग्स के अंदर हैं, एक बाहर है. पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट जिसमें कि ये मिलते हैं, दैट इज जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पे इरिडॉइड्स मिलते हैं. इज प्लमेरिसन, पॉलीएस्टर्स दैट इज वेलेपोट्रिएट्स, और इंट्रामोलिकुलर ईथर दैट इज रिहैमग्लूटिन बी. नाउ नॉन ग्लाइकोसाइड सेकोराइड्स जहाँ पे ये मिलते हैं, सेरिंगिया स्पीशीज, ओलिया स्पीशीज. कार्बन 11 क्या है? कार्बन 11, कार्बन 11 इज कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप जो कि लोगैनिन और जेनियोपोसाइड में प्रेजेंट होता है और पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और मोनोट्रोपिन भी बोला जाता है. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिलीज वेलेरियनेसी, कैप्रिफोलिएसी एंड एल्डिहाइड और मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज लेमियोसाइड, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लेमियोसाइड में प्रेजेंट होते हैं. कार्बन 11 is absent, that is ऑक्यूबिन, केटलपॉल एंड हार्पागोसाइड में. जो आपके कार्बन 11 प्रेजेंट है इरिडॉइड स्केलेटन में वो कार्बन 11 एब्सेंट होता है ऑक्यूबिन, केटलपॉल एंड हार्पागोसाइड कॉन्स्टिट्यूएंट में, जो कि डिफरेंट प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं. पायरान रिंग इज एक्सेप्शनली ओपन. जो आपकी पायरान रिंग है वो एक्सेप्शनली ओपन है. कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स में? जेंशोबायोसाइड्स मीन जेंशियन ड्रग में, ऑफ इरिडॉइडल एंड नेप्टारिसाइड दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ निपेटालेक्टोन, ठीक है. नेक्स्ट, मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 8. जो कार्बन 8 पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में? ऑक्योबिन, मोनोट्रोपिन, इपॉक्साइड, वेल्ट्रेट एंड रेयरली एब्सेंट इन ड्यूसियोसाइड. जो मिथाइल ग्रुप है हमारा कार्बन 8 में प्रेजेंट होता है, कार्बन 8 मॉइटी पर, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होता है? दैट इज ऑक्यूबिन में, मोनोट्रोपिन में, इपॉक्साइड में एंड रेयरली एब्सेंट होता है ड्यूटेजियोसाइड में. अगर हम अनसेचुरेशन करते हैं 7 और 8 पोजीशन की, ठीक है, अनसेचुरेशन कहाँ कहाँ पे मिलती है, कौन कौन सी ड्रग्स में मिलती है? दैट इज जेनिपोसाइड एंड ऑक्यूबिन. विनाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट कार्बन 9 in the drug or in the constituent gentiopicrin, that is the chemical constituent of the drug gentian. Next, oleoside. Oleoside is present in ethylidene, hydroxyethylidene at carbon 9. Carboxy group is esterified also in the chemical constituent oleoropin. Now you can see द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर ऑफ इरिडॉइड ड्रग्स. इसमें आपको क्या पढ़ना है?
दे आर डेलिकेट ड्यू टू देयर ग्रेट इंस्टेबिलिटी, ठीक है, वो बहुत इंस्टेबल कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत डेलिकेट है. इंस्टेबिलिटी डार्कनिंग दैट टेक्स प्लेस सून आफ्टर प्लांट कलेक्शन इन मैनी स्पीशीज कंटेनिंग इरिडोइड्स. बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो कि इरिडोइड्स कंटेन करती हैं, ठीक है, उनमें इंस्टेबिलिटी होती है और वो धीरे धीरे डार्क होती जाती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कलेक्शन के बाद. एक्सट्रैक्शन विद पोलर सॉल्वेंट अल्कोहल्स ऑफ वेरियस कंसनट्रेशन. एक्सट्रैक्शन हमारा पोलर सॉल्वेंट के थ्रू होता है, ठीक है, of various concentrations present. Now the initial separation, redissolving of the extraction residue in water and the re-extracting this with immiscible solvents of increasing polarity. जो initial separation करते हैं, redissolving extraction of residue करते हैं, ठीक है, and re-extract करते हैं इस compound को with immiscible solvents of increasing polarity, ठीक है. Now the procedure of fractionation is chromatography on alumina on charcoal with risk of irreversible adsorption on porous polymers, ठीक है. फ्रैक्शनेशन करते हैं हम एल्यूमिना पे और क्रोमेटोग्राफी करते हैं एल्यूमिना और चारकोल के थ्रू. इसमें जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, इल्यूवेंट यूज होते हैं, वो होते हैं पोलर इल्यूवेंट्स, ठीक है, एंड मोर बाय पोलर रिवर्स फेज HPLC. प्यूरिफिकेशन इज डन विद TLC and HPLC. Detection is done with trim and Hill color agent, that is dilute solution of copper sulfate and hydrochloric acid, which gives blue color. Now the detection spray used for the detection of constituent or iridoid moieties are vanillin H2SO4 and hot hydrochloric acid. Now the basic biological and pharmacological properties of iridoids are: they are involved directly in the defensive functions in ants against insects, ठीक है. Anti-inflammatory activity they pursue, weak by oral route and stronger by topical route, ठीक है. 1 mg of ocubin is a chemical constituent which can be isolated from iridoid containing drugs, plants or insects. Verbenilin or loganin have an activity almost similar to that of 0.5 mg of indomethacin on the TPA induced mouse ear edema, ठीक है. 1 mg ऑक्यूमिन, वर्बेनिलिन और लोगेनिन का वो ही एक्टिविटी देता है सेम जो कि एक्टिविटी इंडोमिथासिन देती है 0.5 mg के साथ इन द TPA induced mouse ear edema. Okay. Category of drugs which includes iridoids are gentian, that is a bitter glycoside, ये आपकी ड्रग्स हैं जो कि इरिडोइड कंटेन करती हैं. पिक्रोराइजा, दैट इज बिटर ग्लाइकोसाइड. मोडिफाइड टर्पिनॉइड्स कौन कौन से हैं मोडिफाइड? कोएशिया, टाइनोस्पोरा, आर्टेमिसिया, टेक्सस एंड एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा, ठीक है. Now this topic will be discussed in next lecture. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom.